Welcome to my channel Yoga with Kiran. So today we are going to learn how to do wheel pose, चक्रासना. आप सभी को पता है चक्रासना जो है वो एक एडवांस आसनास में आता है. सो चक्रासना स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो आपको आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ चाहिए होता है. सो फर्स्ट आपको आपकी शोल्डर का स्ट्रेंथ चाहिए होता है. देन सेकेंड आपको आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है. So whenever you are trying to do wheel pose, make sure you are doing a good warm up for your lower back and your shoulders. And आपको after doing wheel pose, how to balance wheel pose, that is also very important. So we will learn today that how to do wheel pose. So let's start our practice with 3 times of form, then we'll do warm up and then we'll start our practice. So first sitting straight, back straight and sitting in Chin Mudra. Eyes closed, back straight. Make sure your hips back side of your neck in one straight line. Chin parallel to the ground. Inhale and with exhalation chant Om. Inhale. 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 Now slowly rubbing your both palm, generate heat in your palm and place both palm on your eyes. Feel the warmness. Drop down your hands down. Okay, so before doing Chakrasana, let's do some practice for our shoulders and for our back. जिससे हमारा थोड़ा warm up हो जाएगा. Then we'll start our wheel pose Chakrasana. So first हम shoulder के लिए warm up करते हैं. शोल्डर के लिए हम सबसे पहले 2 आसना इंक्लूड करते हैं. अधो मुखा श्वानासना, English name is downward facing dog. Second is Urdh Mukha Svanasana. English name is upward facing dog. So in दोनों asanas के we are going to do 10 rounds. So first let's hold Adho Mukha Svanasana. Now from here श्वास भरेंगे. Inhale and go to Urdh Mukha Svanasana. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Knees down, hips down, going to child pose. So from Adho Mukha to Urdh Mukha, we have done 5 rounds. It's up to your capacity. आपकी क्षमता के अनुसार you can do also 10 rounds and 15 rounds. Okay. And while doing this Chakrasana, do remember अगर आपका lower back pain बहुत ज़्यादा severe है and आपके shoulders में problem है, try to not do this wheel pose. So next practice for our shoulder, we'll do Chaturanga. And we'll try to hold Chaturanga for 5 counting. So how to do Chaturanga? In Chaturanga first, let's try half Chaturanga. Those who are a beginner, so they will get to know how to do Chaturanga.
So in chaturanga, you have to bend your arm at the elbow. When you are bending your arm at the elbow, your chest going down and your elbow should be in line with your wrist. So your position should be like this. You are making a good grip with your hands, spreading out your fingers and chest down, and your elbow should be in, okay, and looking in front. If you can't do full chaturanga, you can do half chaturanga. This is also very good for your arm strength. So now we'll try full chaturanga and we'll try to hold for 5 counting. So again, spreading out your fingers, आप अपनी उंगलियों को ऐसे मैट पे फैला लेंगे. देन बेंडिंग योर आर्म एट द एल्बो, एल्बो आपका इन रहेगा. यहाँ से फुल चतुरंगा करने के लिए आप लेग स्ट्रेट कीजिए एंड होल्ड 1 2 3 4 and 5 down. And going to Shashankasana, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. After Chaturanga, we'll do Gomukh Asana. ये बहुत ही बेसिक आसना है. आर्म की हम स्ट्रेचिंग करेंगे. You are going to place your right leg over your left leg, bringing your left foot outside of your. So आपके लेग का पोजीशन ये होना चाहिए, ओके. अगर आपका राइट लेग अप है, देन आपका लेफ्ट आर्म अप करेंगे एंड बेंडिंग योर लेफ्ट आर्म एट द एल्बो, टेकिंग योर राइट हैंड फ्रॉम द बैक साइड एंड आपकी फिंगर्स को आप इंटरलॉक करेंगे. अगर आपकी फिंगर्स इंटरलॉक नहीं हो रही है, आप कोई भी दुपट्टा या योगा स्ट्रैप जो होता है वो यूज़ कीजिए एंड होल्ड कीजिए अपने दोनों हाथों के बीच में. आपका लेफ्ट एल्बो ऊपर पॉइंट करेगा एंड होल्ड कीजिए फॉर 10 काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Drop down your hands down. सेम वे हम दूसरी साइड करेंगे. अब आपका लेफ्ट नी ऊपर है, so you are going to uplift your right hand up and interlock your fingers and hold this for 10 counting. Look up. 1 2, make sure आप ब्रीदिंग कर रहे हैं. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Drop down your hands down. Okay, so अभी हम कुछ बैक की स्ट्रेचिंग करने वाले हैं. सबसे पहले आसना हम करेंगे धनुरासना, बाव पोज. बहुत ही बेसिक आसना है, आप सबने इसके बारे में सुना भी होगा. सो लेट्स डू धनुरासना, बाव पोज. So you are going to lie down on your abdomen, legs apart. धीरे से आपके राइट हैंड से राइट एंकल पीक पकड़िए एंड आपके लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल पकड़िए. यहाँ से बैक की स्ट्रेच के लिए हेड अप, चिन अप, चेस्ट अप, आपके चेस्ट तक उठाइए. देन आपका नीज अप कीजिए एज हाई एज पॉसिबल. ट्राई कीजिए अगर पॉसिबल हो सके तो आपका पूरा का पूरा बॉडी वेट आपके एब्डोमेन में हो, आपके पेट में हो. एंड ट्राई टू लुक अप एंड होल्ड फॉर 10 काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Down. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Okay, in next practice, we'll do Ustrasana, camel pose. Ustrasana में आपका knees apart करेंगे, shoulder width apart. वेस्ट को होल्ड करेंगे एंड पुश योर हिप्स टू द फ्रंट. आपके हिप्स आगे की तरफ करेंगे ताकि आपके बैक का आर्च बने एंड यू विल फील स्ट्रेच इन योर बैक. होल्डिंग योर वेस्ट, रेजिंग योर राइट आर्म अप, प्लेसिंग योर राइट palm on your right heel, raising your left arm up, placing your left palm on your left heel. Arch your back, hips को आगे कीजिए and look back, पीछे देखिए and hold. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release. Arm straight. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. So हमने बैक के लिए अभी हमने 2 आसना किए हैं, ऊष्ट्रासना एंड धनुरासना। अभी हम स्टैंडिंग पोजीशन में अपना चेस्ट ओपन करेंगे एंड बैक का प्रैक्टिस करेंगे। अर्धचक्रासना। लेग्स को क्लोज लाएंगे एंड आपकी वेस्ट को होल्ड करेंगे। आपका फिंगर जो है पॉइंटिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ। आपके एल्बोस एंड आपका शोल्डर ब्लेड्स क्लोज होना चाहिए इस तरीके से। ओके, नाउ फ्रॉम हियर इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए and arch your back as much as you can and hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. धीरे से वापस आइए। Now sit on your mat. Now we'll try to do wheel pose, Chakrasana. For the wheel pose, now you are lying down on your back. Legs आपका ऐसे bend करेंगे. Then raising your arms up and placing your both palm beside your shoulder. So make sure जब आप अपने हाथों को शोल्डर के पास रखेंगे, आपका फिंगर इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपकी फिंगर्स को पीछे रखते हैं, कभी साइड में रखते हैं। दिस इज रॉन्ग। आप सीधा अपने हाथों को उठाइए एंड पाम्स डाउन। ओके, एंड कोशिश कीजिए इफ इट इज पॉसिबल आपके हाथों को शोल्डर के पास रखें, ना कि हेड के पीछे। ओके, इससे आपका जब आप आपके चेस्ट को उठाएंगे तो आपके शोल्डर पे कम स्ट्रेंथ आएगा इफ यू आर प्लेसिंग इट बिसाइड योर शोल्डर। एंड आपका एल्बो जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। ओके, एल्बो शुड बी पॉइंटिंग अप। अगेन स्प्रेड आउट योर फिंगर्स। आपकी फिंगर्स को फैला के रखिए, उंगलियों को फैला के रखिए ताकि अच्छा सा ग्रिप बने। ना इनहेल कीजिए, हिप्स को उठाएंगे, चेस्ट को उठाएंगे, हिप्स अप, चेस्ट अप। यहाँ से आपके हेड को उठा के आप इन लेंगे अंदर की तरफ ऐसे। ओके, अगर आप कंफर्टेबल है देन अपलिफ्ट योर हेड अप एंड आर्म स्ट्रेट कीजिए एंड ट्राई टू होल्ड फॉर 5 काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप फुल वीज पोज में कंफर्टेबल नहीं है, हेड डाउन एंड आप इतना होल्ड कीजिए। अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से हिप्स डाउन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out. Now sit on your mat. After doing wheel pose, आप इसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करना ना भूलें क्योंकि हमारी बैक में अच्छा खासा स्ट्रेच आता है। Now we'll do forward bending, Paschimottanasana. Inhale, arms up. Exhale, bend forward and hold your big toe. First try to touch your abdomen, then your chest, looking in front and hold. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2. Inhale, exhale 3. Inhale, exhale 4. Inhale, exhale 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप अपनी फिंगर्स भी इंटरलॉक कर सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Raise your both arms up. Drop down your hands down. So, आज हमने व्हील पोज की प्रैक्टिस की है जिसमें हमने शोल्डर की स्ट्रेंथ के आसनास इंक्लूड किए
एंड अपनी बैक की स्ट्रेंथ के लिए हमने कुछ आसनास इंक्लूड किए हैं। हमने हर एक आसना को 5-5 काउंटिंग तक होल्ड करने की कोशिश की है। अगर आपको अपने शोल्डर्स का एंड बैक की स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंक्रीज करनी है, हर आसना को ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देर होल्ड नहीं हो पाता है, आप उसके रिपीटिशन बढ़ाइए। लाइक 5 काउंटिंग पहले आपने होल्ड किया, देन अगेन 5 काउंटिंग, देन अगेन 5 काउंटिंग। तो आप 3-3 रिपीटिशन के साथ हर एक आसना होल्ड कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा एंड यू कैन डू व्हील पोज। So for shoulder strength, we have done Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, Gomukh Asana, and for back we have done Dhanurasana and Camel Pose, जिसको हिंदी में हम उष्ट्रासना बोलते हैं। एंड हमने स्टैंडिंग पोजीशन में अर्ध चक्रासना किया बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आप ये सभी आसना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली यू कैन डू व्हील पोज। मे बी अगर आप आज ना कर पाएँ व्हील पोज, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर आप अपनी शोल्डर एंड बैक स्ट्रेंथ में अच्छे से वर्क करते रहेंगे, आप व्हील पोज कर पाएंगे। ओके, सो आप ये सारे आसनास कीजिए, बट अपनी मेडिकल प्रॉब्लम को ध्यान में रख के। अगर स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है, बहुत ही सीवियर बैक प्रॉब्लम है, डोंट डू व्हील पोज। आप हाफ व्हील पोज ट्राई कीजिए, अपने हेड को मत उठाइए। शोल्डर का अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अपने शोल्डर को नुकसान ना देने के लिए अपने शोल्डर पे ज़्यादा स्ट्रेंथ ना डालें। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। एंड आपको लगता है कि आप किसी और आसनास में भी वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। आज हमने चक्रासना ट्राई किया है, ये एक एडवांस आसनास में आता है। नेक्स्ट टाइम हम एक और एडवांस आसना लेके आएंगे, फिर हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो हम अपना सेशन यहीं क्लोज करते हैं। हम फिर से चिन्ह मुद्रा में बैठेंगे। इन 3 टाइम्स हम ओम चैंटिंग करेंगे। Now rub your palm, generate it in your palm. Rub your palm, rub your palm. Place both palm on your eyes, feel the warmness. Drop down your hands down with a few blinks, open your eyes. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई और आपका दिन शुभ हो। नमस्ते जी।